हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। द नेम इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो बाय नाउ वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग और ये एसेंशियल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन of a species and also for the survival of a species. Okay, so normal reproduction जो है that will be related with normal reproductive health. Okay, so what do you mean by reproductive health? It is it is referring to the healthy reproductive organs. Okay, normal and healthy reproductive organs which will be performing normally, okay, with normal functions. So that is called as reproductive health. It refers to healthy reproductive organs with normal functionings. Okay, so WHO, the World Health Organization, according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. Okay, may it be physical, may it be emotional, may it be social or behavioral. Okay, so total well-being of all aspects of reproduction. It includes physical well-being, emotional well-being, behavioral well-being and social well-being. So the person having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral balance, okay, or normal emotional and behavioral interactions among them, such persons will be called as reproductively healthy persons. Okay, so this would be healthy in all aspects of or sex related aspects, okay, all the aspects of sex. Okay, so in a healthy society or for a healthy society it is important to maintain reproductive health. किसी भी healthy society के लिए reproductive health maintain करना it is an important thing. Okay, so what are the problems and strategies related to reproductive health? Let's go through them. Okay, so the main problem related to reproductive health and strategies is to be adapting to deal with such problems. Okay, so ये सारे problems जो हम लोग अभी discuss करेंगे इनके साथ कैसे deal करना वही एक main problem हो जाता है. Okay, so let us see what are the problems. The first thing we are going to discuss about is overpopulation. Okay, overpopulation. In particularly India, अगर इंडिया की बात की जाए, India is a very populous country and जितना बड़ा population है इंडिया का, that is only the main problem of our country. Okay, and it is concerned with reproductive health also, and India was amongst the first countries in the world to initiate the action plans and programs related to reproduction or reproductive health. Okay, action plans and प्रोग्राम्स और ये नेशनल लेवल पे अटेन किए गए हैं रिगार्डिंग टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये एक सोशल गोल की तरह इन्हें किया गया इंडिया में सबसे पहले. ओके, टेकिंग इट एज ए सोशल गोल, all the plans and actions and action plans and programs were initiated in India, and one of such program is the family planning program. Okay, family planning program जो कि 1951 में इनिशिएट किया गया था, इन द ईयर 1951, एंड उसे हर साल मतलब पीरियडिकली उसे एक्सेस भी किया गया एंड प्रेजेंटली यहाँ पर इम्प्रूव प्रोग्राम्स आ चुके हैं एंड वो ऑपरेशन मतलब उनके ऑपरेशंस भी सही तरीके से चल रहे हैं. वन ऑफ सच प्रोग्राम इज द RCH प्रोग्राम. RCH प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. Okay, reproductive and child health care program. This is the name of the RCH program. और इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इन सारे प्रोग्राम्स के? दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस among people, and by creating awareness they will be telling them about various aspects which are related to reproduction
and also to provide facilities. Okay, one aim is to create awareness, and second thing is to provide facilities. Okay, so they will be providing facilities and which will be supporting and which will be building up a reproductively healthy society. Okay, so these are the aims: awareness and providing proper facilities. अंडर दिस कंडीशंस, ऐसे सिचुएशंस में जहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा है, बहुत तरीके से WHO ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलाए हैं. ओके, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में लाइक टू इम्यूनाइज द चाइल्ड, टू इम्यूनाइज द चिल्ड्रन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ओके, अगेंस्ट 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीजेस. What are the 6 major communicable diseases? We'll come to that. Those are tuberculosis or TB, diphtheria, pertussis या जिसे बोलते हैं whooping cough. Okay, pertussis या whooping cough. Then tetanus, then measles, and lastly polio. Okay, 2 बूंद जिंदगी के, right? So these are the diseases: tuberculosis, diphtheria, pertussis या whooping cough जिसे बोलते हैं, tetanus, measles and polio. इन 6 मेजर डिजीजेस के खिलाफ मतलब क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO ने चलाया, और इंडिया में भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन द ईयर 1985. ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन इंडिया 1985 में. और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से मतलब बच्चों को अलग अलग तरीके के वैक्सीन अलग अलग समय पे दिए जाते हैं. लाइक बर्थ में दिया जाता है BCG वैक्सीन, देन ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी यानी जिसे जॉन्डिस भी बोलते हैं उसके खिलाफ वैक्सीन दिया जाता है. देन 6 वीक्स में एक उसको DPT वैक्सीन दिया जाता है. फिर अगेन पोलियो और हेपेटाइटिस का दूसरा वैक्सीन दिया जाता है 6 वीक्स में. देन अगेन थर्ड बार उसको 10 वीक्स में दिया जाता है, DPT का सेकेंड डोज दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का थर्ड डोज, एंड फिर अगेन 14 वीक्स, एंड देन 6 to 9 मंथ्स में, देन 9 मंथ्स में एक बार, 18 मंथ्स में एक बार, ऐसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इवन 15-16 ईयर्स तक भी बच्चों को टीटनस, 15-16 ईयर्स के बच्चों को टीटनस का लास्ट डोज दिया जाता है. ओके, सो ये एक तरीके का प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इंडिया में चलता आ रहा है सिंस 1985 जब से वो लॉन्च हुआ है. ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू इरेडिकेट मेजर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, so the second problem is awareness about reproduction. We were talking about overpopulation. Now we will talk about the awareness about reproduction. This is the second major प्रॉब्लम. ओके, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, जैसे कि NGOs हो, तो उन लोग बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं लाइक टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ओके, चाहे ऑडियो विजुअल्स हो, प्रिंट मीडिया हो. ओके, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके वो लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं अमंग द सोसाइटी. एंड पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स टू द यंग स्टूडेंट्स, लाइक प्यूबर्टी में जो प्यूबर्टी पार कर रहे हैं उन लोग को. ओके, सो दे गेट हेल्प फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स. देन थर्ड थिंग इज सेक्स एजुकेशन. सेक्स एजुकेशन, ओके,
इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड, ये अब तो शुरू हो चुका है, एनकरेज हो चुका है, एंड अभी सेक्स एजुकेशन स्कूल में शुरू हो चुका है। एंड ऐसे एजुकेशन से क्या होता है, चिल्ड्रेन विल बी डिस्करेज बाय बिलीविंग इनटू द मिथ्स। चिल्ड्रन, बच्चे लोगों का मिथ में बहुत बिलीव रह जाता है, ओके, सो वो डिस्करेज करता है। सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली होगा देन दे विल बी ऑटोमेटिकली नोइंग द फैक्ट्स, और वो लोग मिथ में बिलीव करना छोड़ेंगे, मिसकॉन्सेप्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, जो कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में उनको मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, उससे वो छुटकारा पाते हैं बाय हैविंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन फ्रॉम स्कूल टाइम। देन नेक्स्ट थिंग इज adolescence related changes and STDs. Okay, adolescence related changes and together with that the STDs, sexually transmitted diseases. Okay, तो यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन यंग्स को, यूथ्स को देने की ज़रूरत है अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट एडोलोसेंस मीन्स विच इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का पीरियड, द रैपिड ग्रोथ पीरियड, ओके, दैट्स कॉल्ड एज एडोलोसेंस पीरियड। सो एट दिस टाइम उन लोग को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ओके, अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देन सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में उनको पता होना चाहिए, ओके। एसटीडीज, लाइक वन ऑफ सच एसटीडीज इज द एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। सो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिलनी चाहिए एंड दैट विल हेल्प देम टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, ओके। नेक्स्ट, it is the birth control and care of mother and child. Birth control and care of mother and child. सोशियली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज का क्या टारगेट होता है, दैट डिजायर्ड साइज रहे, फैमिली का डिजायर्ड साइज होना चाहिए एंड दैट कुड बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल, ओके। स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स है, जो कि मैरिजेबल एज में है, ऐसे कपल्स को या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग को सही एजुकेशन देना पड़ेगा, ओके। एंड अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अबाउट पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब जन्म के बाद बेबी का कैसे ख्याल रखा जाए, एंड नॉट ओनली बेबी, मदर का भी कैसे ख्याल रखा जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कशन जरूर करने चाहिए, और ये सब सेक्स एजुकेशन में भी इंक्लूडेड होता है, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ऑल्सो, ओके। सेक्स अब्यूज हो या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो, वो सब डिस्कशन, लाइक अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स आते हैं देश में, बहुत सारे, ओवरऑल अगर कंट्री की बात की जाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने से। सोशल एविल्स जनरेट होते हैं, जैसे कि सेक्स अब्यूज हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए मतलब अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। इट शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल, इट शुड बी क्रिएटेड अमंग द यूथ्स, ओके, एंड नेसेसरी स्टेप्स भी लिए जाने चाहिए टू प्रिवेंट ऑल सच क्राइम्स, जो कि सेक्स अब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए। एंड दैट्स देन ओनली द सोसाइटी विल बी कंसिडर टू बी अ हेल्दी सोसाइटी, ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ ये सारे मैटर्स भी जुड़े हुए हैं, सोशल मैटर्स भी जुड़े हुए हैं, ओके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड मटेरियल सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, सो व्हाट इज इट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेंड करने के लिए सोसाइटी बहुत सारे एक्शन प्लान्स लेती है, जैसे हमने जाना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट शुड बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ओके। सो कुछ बहुत सारे ऐसे एसेंशियल लाइक मेडिकल असिस्टेंस हो गया, एंड पीपल का केयर करना जो कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में है, लाइक उनसे बिछड़ना नहीं है, उन्हें अलग नहीं रखना है, ओके।
सो वी नीड टू केयर अबाउट देम एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेगनेंसी के समय में, डिलीवरी के समय में, एसटीडीज के बारे में ध्यान रखना, अबॉर्शंस, कंट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना. ओके, टू टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके, देन बेटर टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है, नई नई स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती है टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल. ओके, एंड वन मोर थिंग हियर टू बी मेंशन्ड इज, जब हम लोग मटेरियल सपोर्ट की बात करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वन ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज amniocentesis. Okay, amniocentesis, which means a fetal sex determination test. Okay, fetal sex determination test मतलब जब वो चाइल्ड मदर्स बॉडी में ही है, एट दैट टाइम हम लोग उसका सेक्स डिटरमाइन कर देते हैं. ओके, fetal sex determination test. This is done with the help of a fluid called as एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड को मदर्स बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और निडल. इंजेक्शन के थ्रू उसको निकाला जा सकता है एंड उसके पैटर्न को, उसके सराउंडिंग में क्या क्या पैटर्न है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के सराउंडिंग्स में क्या पैटर्न है, उस सबको देख के उसका सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है लीगली. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्रीज फीमेल फर्टिसाइड्स विद दिस. ओके, इसके साथ साथ फीमेल फर्टिसाइड भी इंक्रीज होता है. लाइक देश के कई सारे हिस्सों में आज भी माना जाता है कि लड़कियों का पैदा होना अच्छा नहीं होता है, सो वहाँ से फीमेल फर्टिसाइड होता है. दैट्स वाई एमनियोसेंटेसिस हैव अ स्टैट्यूटरी बैन इन इंडिया ऑल्सो. ओके, उसके बाद भी हालांकि होता ही है, दैट्स हैपनिंग स्टिल. ओके, बट इट इज़ बैन इन इंडिया, स्टैट्यूटरी बैन लगाया हुआ है उसके ऊपर. एंड मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए. ओके, that's also coming under infrastructural facilities, massive child immunization program. Then next thing is research on reproduction related areas. Okay, research like बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिनको एनकरेज किया जा सकता है, जिनके गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ सपोर्ट में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ताकि नए नए मेथड्स निकाल सके, इम्प्रूव कर सके और उन्हें जो एग्जिस्टिंग वन से उनके साथ साथ अप्लाई किया जा सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल सहेली. सहेली is a new oral contraceptive for females that was developed by scientists at the CDRI, Central Drug Research Institute, लखनऊ. इंडिया के लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डेवलप किए गए थे फॉर द फीमेल्स. ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड लास्ट थिंग इज अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज. So better awareness about sex related matters and overall increased medical facilities. Increased medical facilities could cure our sex related problems to some extent. Okay, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज होने का एम क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंक्रीज नंबर ऑफ medically assisted deliveries and better postnatal care. Okay, that will be leading to developed maternal and infant mortality rates. Okay, जो हम बोलते हैं MMR and IMR, infant mortality rate and maternal mortality rate, उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं. ओके, बाय हैविंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज. एंड जितने इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स है जिनके छोटे छोटे फैमिलीज हैं, तो हम लोग उनमें इजीली बेटर डिटेक्शन कर सकते हैं एंड बेटर एसटीडीज का क्योर भी कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपर होंगी तो IMR एंड MMR डिक्रीज किया जा सकता है. ओके, सो कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल methods. Population explosion. What do you exactly mean by population explosion? Okay, population will be defined as the total number of individuals of a species present in a particular
area. Okay, total number of individuals in a particular area, और वो सेम स्पेसिस के होंगे. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉपुलेशन, लाइक वी आर हैविंग द ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, तो एक स्पेसिस में बहुत सारे पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकते हैं एक अलग अलग रीजन्स में. ओके, एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. ओके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. और उसमें 3 अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लाइक चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ओके, पॉपुलेशन साइज चेंज क्या कैसे हो रहा है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं. सॉरी, चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज. सेकेंड एस्पेक्ट विल बी द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, how many males, how many females, like that. Okay, and third thing is the distribution of population. किस रीजन में कितना पॉपुलेशन है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो ये एक ऑफिशियल काउंटिंग हो सकता है पॉपुलेशन को लेके, और उसको लेके हम लोग डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, एंड कितने बर्थ्स होते हैं, कितने डेथ्स होते हैं, सेक्स रेशियो क्या है. ओके, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं अंडर डेमोग्राफी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसस. ओके, सेंसस भी बोलते हैं. और ये जो सेंसस है ये कंडक्ट किया जाता है एज पर द प्रोविजन मेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948. ओके, सेंसस एक्ट 1948 में आया, उसके तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें की जाती है. ओके, और ये कंडक्ट किया जाता है इंडिया में भी पहला सेंसस हुआ था 1891 में कंडक्ट किया गया था, एंड तब से लेके रेगुलरली इसे हर 10 साल के अंतराल में, हर एवरी 10 ईयर्स के इंटरवल में इसे कंडक्ट किया जा रहा है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेंचुरी अगर हम बात करें, सो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ऑफ कोर्स, है ना, ड्यू टू ओवरऑल डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स. अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट की वजह से हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है. एंड इसी की वजह से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है अराउंड 2 बिलियन हुआ करता था इन 1900s, दैट रीच्ड टू 6 बिलियन इन 2000s. ओके, मतलब 2 से 4 बिलियन बढ़ के 6 बिलियन हो गया. ओके, एंड ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिला. हमारा भी पॉपुलेशन बढ़ा, लाइक इट वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन. जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तब अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन था, लेकिन इट रीच्ड टू 2000 एज पर द सेंसस लास्टली डन इन 2011 आई थिंक. ओके, तो उसके तहत इतना इंक्रीज पाया गया, एंड इट क्रॉस्ड 1 बिलियन इन May 2000. May 2000 की बात करें, सो 1 बिलियन population was crossed, the number was crossing 1 billion. okay, and इसका मतलब ये है कि अगर हम दुनिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो दुनिया में हर छठा आदमी एक इंडियन होगा. ओके, एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड विल बी अ इंडियन. ओके, सो ये जो रैपिड इंक्रीज हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का इन सच अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड अगर देखा जाए तो, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि इंडिया में ज़्यादातर मतलब इंडिया में देखा गया है. ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोड होते हुए. सो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा, उसके साथ साथ क्या होगा, देयर विल बी अदर थिंग्स लाइक स्कैसिटी बढ़ेगा, बेसिक नीड्स की स्कैसिटी बढ़ेगी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और इन सब चीज़ों में तो कोई खास प्रोग्रेस हुआ नहीं था. ओके, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोड होते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आने लग गए. ओके, सो व्हाट वर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन explosion? Let us check. Human population is largely increasing due to a rapid decline in the death rate. Death rate decline करेगा तो of course population बढ़ेगा. Then MMR, maternal mortality rate, okay, and IMR, infant mortality rate. ये सारी चीज़ें अगर कमेगी, IMR एंड MMR डिक्रीज होगा, देन ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा. ओके, और ये तो ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रहा है, डेथ रेट भी. ओके,
देन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो कि रिप्रोड्यूसिबल एज में है, उनका नंबर बढ़ना, दैट विल लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ कोर्स, है ना. Increase in people in reproductive age. Okay, yeah. So next thing is better public health care and greater medical attention. Public health care और medical attention का अच्छा होना, प्रबंध अच्छा हो जाना. Then control of certain diseases. Diseases का control में आ जाना. That will also increase population. Death rate कमेंगे उससे भी. Then protection from natural calamities. टेक्निक सीख गए अभी हम लोग, है ना. सो नेचुरल कैलामिटीज से प्रोटेक्शन हो गया. देन बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं. एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बढ़ गया. उसकी वजह से क्या हुआ, बेटर अवेलेबिलिटी हुआ. ओके, दैट विल ऑल्सो लीड टू पॉपुलेशन इंक्रीज. बेटर अवेलेबिलिटी. And last thing is opposition of family planning program. Okay, certain religions में ऐसा हुआ देखने को मिला कि उन्होंने oppose किया family planning programs को, and they continued with their own programs. Okay, so दो हमारा RCH program आया, वो bring down किया गया, population growth rate को कमाया, but उसके बाद भी सेंसस 2001 की रिपोर्ट में देखा गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ते ही गया, अराउंड 1.7%. मतलब कि एक साल में 1000 लोगों में 17 लोग ज़्यादा बढ़ने लग गए. ओके, लाइक 1.7% एट अ रेट, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 33 सालों में ही डबल हो गया. ओके, 33 ईयर्स में आवर पॉपुलेशन गेट डबल्ड. ओके, सो दिस शुड बी कंट्रोल, है ना. सो व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, नाउ वी विल डिस्कस देम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल करना है, राइट. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट एजुकेशन. प्रॉपर एजुकेशन विल बी हेल्पिंग इन क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस, एंड जिसकी वजह से वी कुड एटलीस्ट कंट्रोल पॉपुलेशन. ओके, पीपुल मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए, मतलब एक स्मॉल फैमिली नॉर्म को एक्सेप्ट करना है. ओके, जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हुआ है. अवेयरनेस क्रिएट करना है रिगार्डिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड लोगों को मोटिवेट करना है स्मॉल फैमिलीज रखने के लिए, राइट. देन पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्टिव एज में है लोग, उन लोग को एजुकेट करना है अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली. बहुत सारे एनजीओज ने ऐसे कदम उठाए भी है, मास मीडिया ने भी सपोर्ट किया है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ऐसे कैंपेन वगैरह को लेके. ओके, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए टीवी वगैरह में, लाइक हम दो हमारे दो, है ना. एंड बहुत सारे कपल में, मेनली जो यंग कपल्स होते हैं और जो अर्बन वर्किंग कपल्स होते हैं, इन लोगों ने ये सारी चीज़ों को अपनाया. ओके, एंड उसके बाद में हम दो हमारे दो के बाद में 1 चाइल्ड नॉर्म भी आया, तो एक कपल एक ही चाइल्ड भी करने लग गए. आजकल इंडिया में यही चलन चला है. ओके, कपल्स के बीच में एक ही चाइल्ड आजकल देखने को मिलता है. ओके, सेकेंड थिंग इज रेजिंग ऑफ मैरिजेबल ग्रुप, यानी एज ग्रुप. ओके, मैरिजेबल एज ग्रुप का बढ़ा देना, एज ग्रुप बढ़ा देना. हमारा देश का मैरिजेबल एज ग्रुप फॉर फीमेल इज 18 ईयर्स एंड फॉर मेल इज 21 ईयर्स. ओके, तो ये मैरिजेबल एज ग्रुप को बढ़ाया गया. देन कुछ इंसेंटिव्स, सर्टेन इंसेंटिव्स कुड बी गिवन टू द कपल्स जो कि स्मॉल फैमिलीज रखते हैं, ताकि ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके. एंड वो इंसेंटिव्स किसी भी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि 1 चाइल्ड नॉर्म अडोप्ट करते हैं, या उनके लिए लाइक फ्री एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड. ये कुछ अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी टू द कपल्स जो कि फॉलो करती थी नॉर्म्स को. ओके, 1 चाइल्ड नॉर्म जिन्होंने फॉलो किया, हम दो हमारे दो जिन्होंने फॉलो किया, लाइक ग्रीन कार्ड वॉज द फैसिलिटीज गिवन टू हम दो हमारे दो वाले कपल्स. ओके, like this. Then next thing is the family planning. Family planning. Okay.
जो कपल्स रिप्रोडक्टिव एज में है उनको मोटिवेट किया जाता है टू प्लान देयर फैमिलीज बाय एडप्टिंग birth control measures. Okay, so what are the birth control measures? Now let us go through them one by one. Birth control measures, these are the measures to prevent the birth of a child by using some kind of contraceptives. Okay, अलग अलग टाइप के contraceptive measures use करके हम लोग child birth को prevent कर सकते हैं. Okay, so let us learn about them. What is an ideal contraceptive? पहले तो ये जानते हैं. Ideal contraceptive किसे माना जाएगा? So an ideal contraceptive should be user friendly. It should be user friendly, then it should be easily available, okay, user friendly, easily available, and it should also be reversible. Okay, available, easily available and reversible, then with no or least side effects, उसमें side effects नहीं होने चाहिए. Okay, and it should not interfere with the sexual drive. Okay, no interference to the sexual drive. So these are some of the qualities that an ideal contraceptive should have. Okay, और commonly used contraceptive methods जो है unwanted pregnancies को prevent करते हैं, उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे. उनको broadly grouping किया जाता है. Like first thing is natural barriers, natural methods of contraceptions. Then second thing is barrier method of contraceptions. Then third thing is intrauterine devices, IUDs, and the next thing is oral contraceptives. Okay, oral contraceptives. Then there could be injectables and implants. Okay, injectables and implants, and lastly the surgical methods. Okay, so the contraceptive methods are grouped under this kind of categories, जिनके बारे में एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे. Okay, natural methods, barrier methods, IUDs, then oral contraceptive, injectables and implants, and surgical method. तो सबसे पहले जानते हैं natural methods के बारे में. Natural methods ये ऐसे methods है जो कि chances of meeting the ovum and sperm उसके ऊपर काम करते हैं. They try to avoid the chances of meeting the sperm and the ovum, so that will not fertilization नहीं होने देगा. Okay, like that. So various natural contraceptive methods are, first thing is periodic abstinence. Periodic abstinence मतलब avoidance of sex. Okay, during the fertile period. So ये ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं कपल्स, दे विल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस. कोइटस मीन्स इंटरकोर्स. ओके, सो दे विल बी अवॉइडिंग द इंटरकोर्स फ्रॉम द 10th to 17th day of menstrual cycle. Okay, 10th to 17th day, which is also called as the fertile period. Okay, तो उस समय पे वो लोग कोइटस अवॉइड करेंगे, इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे, सो दैट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड बिकॉज फर्टाइल पीरियड में 10 to 17 डेज में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. सो देयरफॉर conception should be prevented by abstaining coitus or not doing intercourse during this time, during this fertile period. Okay, this is called as the method periodic abstinence. और ये मेथड किस फैक्ट्स के बेसिस पे चूज किया गया है? लाइक ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पे होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है एंड ओवम रिलीज होता है उस समय पे, और ओवम अलाइव रहता है लगभग 1 से 2 दिनों तक. सो
at that time it should be avoided. And sperms जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा छोड़े जाते हैं, those remain active up to about 3 days after copulation. So yes, of course 14th से लेके 3 days यानी 17th day तक सेक्स अवॉइड किया जा सकता है. ओके, देन द सेकेंड मेथड अंडर नेचुरल मेथड इज विड्रॉल, और जिसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस. ओके, कोइटस इंटरप्टस. दिस मेथड नीड्स गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल. ओके, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. द मेल पार्टनर हियर इट विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. ओके, ठीक इजैकुलेशन के पहले पेनिस को रिमूव कर दिया जाएगा टू अवॉइड इंसेमिनेशन. और ये मेथड जो है सिर्फ मॉडरेटली इफेक्टिव है, बिकॉज क्या होता है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो बहुत ही प्लीजेंट और स्पेशल मोमेंट हो जाता है फॉर मेल्स. सो सम ऑफ द स्पर्म्स में पास इन टू द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. ओके, सो ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं, इट शुड बी नॉट टेकन एज प्योर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, सो क्या होता है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के सिक्रेशंस होते हैं उसमें भी स्पर्मेटोजोआ कैरी किए जा सकते हैं बिफोर इजैकुलेशन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हाई फेलियर ऑफ दिस method, withdrawal method of birth control. And the third method is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea ये होता है absence of menstruation during the lactation period. जब डिलीवरी हो जाता है बेबी का, ओके, एट दैट टाइम क्या होता है, आफ्टर पार्चुरेशन अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन सीज हुआ रहता है. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हुआ रहता है एंड ओव्यूलेशन होता नहीं है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन. तो जब तक बेबी को मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तब तक चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन बहुत ही कम होते हैं. देयर आर ऑलमोस्ट नील चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, सो दिस मेथड इज ओनली इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ओके, so these are the methods of मतलब natural methods of contraception. Let us now move to the barrier methods. Barrier methods, these are the methods which prevent physically the meeting of sperm and ovum with the help of certain kind of barriers. Okay, so बैरियर्स कुड बी अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. दोनों के लिए बैरियर्स अवेलेबल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल condoms are available for both males and females, and condoms are made up of thin latex और रबर के शीट से बनता है ये. ओके, thin latex और rubber sheath that are used to cover the penis in the male और vagina in the female. वेजिना एंड सर्विक्स को वो कवर कर सकते हैं जस्ट बिफोर कॉइटस, सो दैट द इजैकुलेटेड सेमेन वुड नॉट बी एबल टू एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन एनी वेज. ओके, एंड कॉन्डम विल प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल्सो इट विल प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज ऑल्सो. ओके, एसटीडीज के कॉन्टैक्ट नहीं आ पाएंगे. ओके, एड्स हो गया, ओके, एंड हेपेटाइटिस हो गया, ऐसे टाइप के एसटीडीज ऐसे मेथड से नहीं होते हैं. ओके, देन अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, द निरोध. ओके, इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड and use of condoms has been increased in recent years and they provide protection against sexually transmitted diseases as well. So ये बहुत ही famous हो गया ये method use करना. Okay, next are other kind of barriers are the diaphragms. Okay, diaphragms हो गए, cervical caps हो गए and vaults. ये जो तीनों चीजें हैं, these are the barriers which are also made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract. ये सारे जो चीजें हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, so they will block the entry of sperms through
through the cervix and just prevent conception by such. Okay, so these are also reusable and they could be used only at the time of coitus. Okay, and some kind of like spermicidal cream या jellies या foam वगैरह भी generally उसके साथ use किया जाता है to increase the efficiency of this methods. Okay, ये सारी चीज़ों को इंसर्ट करने के पहले उसमें क्रीम या जेलीज जो स्पर्मिसाइडल होती है, जो स्पर्म्स को मार देते हैं, वैसे क्रीम या जेलीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इनके साथ. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ये जो डिवाइसेस होते हैं, these are generally used to gap between two consecutive pregnancies. Okay, these are plastic devices and which are available in various shapes, and these are inserted in the uterus through the vagina, and it is necessary that doctor advice या फिर nurse के expert nurse के through ही ये insert करवाया जाए. Okay, and presently contraceptive devices are available in different forms. The first one is non-medicated IUDs. Second one is copper releasing IUDs, and third one is hormone releasing IUDs. ये 3 तरीके के IUDs अभी presently available हो सकते हैं. Okay, non-medicated IUDs, common one is the Lippes loop. ओके, लिपिस लूप ये क्या करता है, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है विद इन द यूटेरस. ओके, सो स्पर्म को ये खा जाते हैं, लाइक फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इज इंक्रीज्ड इन द यूटेरस. नेक्स्ट वन इज द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. द वेरी फेमस इज द कॉपर टी. ओके, कॉपर टी के अलावा कॉपर 7, देन मल्टीलोड 375, ये भी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है. ओके, सो ये क्या करते हैं, कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, इट विल सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स एंड हेंस उनका स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाता है बाय द यूज ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. देन थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. फॉर एग्जांपल LNG-20. LNG-20 हो गया, देन प्रोजेस्टेसर्ट हो गया. ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, एंड ये भी वही सेम काम करते हैं. दे विल ऑल्सो इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एंड दे विल मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. यहाँ पर यूटेरस को अनसुटेबल बना दिया जाता है फॉर इम्प्लांटेशन, एंड द सर्विक्स ऑल्सो विल बिकम हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स. ओके, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगा. So IUDs are considered to be ideal contraceptives for the females and mainly जैसे मैंने बोला to delay the pregnancies, 2 pregnancies के बीच में गैप लेने के लिए IUDs का इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, एंड इंडिया में IUDs बहुत वाइडली एक्सेप्ट किए गए हैं एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द oral contraceptive pill method of contraception.